Hello children, I am Poonam Bagga and we are studying chapter 3, pair of linear equations in two variables. In our last class, we learnt the cross multiplication method to solve a given pair of linear equations in two variables. Today we are going to start exercise 3.5 and we will be doing some of the questions based on this method. So let us begin with the first question. Here it is. Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. So here some pairs of linear equations will be given and we have to check whether there is no solution or the pair has infinitely many solutions or the pair has a unique solution. This we have to check. Let us quickly recall those conditions which helped us to identify the type of solutions. वो तीन conditions एक बार जल्दी से recall कर लेते हैं in case you have missed it out in our previous classes. So the first one was A1 upon A2 not equal to B1 upon B2. This gives us a unique solution. And recall the equations were of the form A1x plus B1y plus C1 equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 equal to 0. अगर हम equations का ये general form लें तब अगर हम coefficients के ratios लें और वो A1 upon A2 not equal to B1 by B2 है तब इस pair का unique solution होगा. अगर तीनों ही ratios equal हैं A1 upon A2, B1 by B2 and C1 by C2. If all the three are equal, this implies many solutions. And in case we have A1 upon A2 equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2, in that case there is no solution. I hope this is very much clear to you. So now we begin with the first part. We have these two equations and comparing these equations, their coefficients with these given equations and then taking the ratios of the coefficients, we will get A1 upon A2 as equal to, here A1 it is the coefficient of x. यहाँ कोई number visible नहीं है मतलब यहाँ पे coefficient है 1. I hope you understand this. और यहाँ पर x के साथ है 3. तो ये हो गया A1 और ये हो गया A2. हम इस फॉर्म से अगर कंपेयर करें तब तो आप लिख सकते हैं A1 upon A2 is 1 by 3. Then B1 by B2. B1 है y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में और वो क्या है? Is it 3? No, it's -3. Remember to take the sign along with the number. So this will be -3. And in the denominator we will have B2. It is the coefficient of y in the second equation and it is -9. Minus and minus will be cancelled and 3 1s are 3, 3 3s are 9. It is again 1 by 3. Let us now find the value of C1 by C2. C1 it is -3 as you can see and here we have -2. Now minus and minus will be cancelled and we will get it equal to 3 by 2. So now what do we get? हम देख रहे हैं A1 by A2 1 by 3 है, ये भी 1 by 3 है लेकिन ये तो अलग वैल्यू है. So this means that A1 upon A2 it is equal to B1 upon B2 and then not equal to C1 upon C2. और ये किसकी कंडीशन है? बिल्कुल, this is the condition for no solution of the given pair of equations and so we can say hence the given pair of equations has no solution. यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि इंडिविजुअली हर एक इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशंस होते हैं. अगर हम एक बार में एक ही इक्वेशन लेंगे तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं लेकिन जब हम एक पेयर ले रहे हैं, दो इक्वेशंस एक साथ ले रहे हैं
तब ऐसा कोई भी सॉल्यूशन इस केस में पॉसिबल नहीं है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर सके, और इसलिए हम कह रहे हैं कि पेयर हैज़ नो सॉल्यूशन एंड दिस इज द कंडीशन. I hope it is clear. Then we take the second part. These are the equations, and again let us write these equations in the form 2x plus y minus 5 equal to 0 and 3x plus 2y minus 8 equal to 0. इस फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम इन इक्वेशंस को इन जनरल फॉर्म की इक्वेशंस से कंपेयर करते हुए a1 a2 b1 b2 c1 c2 आइडेंटिफाई करके इजीली इनका रेशियो निकाल सकते हैं. किस तरह से? a1 अपॉन a2 देखिए क्या हो जाएगा. a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x और वो है 2 और सेकेंड इक्वेशन में ये है 3, सो 2/3. देन b1 बाय b2. What is the value of b? कोएफिशिएंट ऑफ y और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 है, so b1 is 1, b2 is this number 2, 1/2. आप देखिए ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इस केस में हमें c1/c2 की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है. यहीं से हम बता सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2. अगर ये दोनों इक्वल आते तब हम c1/c2 की वैल्यू भी निकालते. इन दिस केस देर इज़ नो नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c1/c2. और ये किसकी कंडीशन है? Yes, it is the case of unique solution. So here we can say, hence the given pair of equations has unique solution. और यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमें वो सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है by cross multiplication method. So let us write these equations once again on a new page. The equations are, let us write the equations 2x plus y minus 5. Remember, in case of solving by cross multiplication method, इस फॉर्म में इक्वेशंस को लिखना ज़रूरी है, कंपलसरी है, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर. तो इसमें आपको कांस्टेंट को LHS में ही रखना होगा. और सेकंड इक्वेशन हमारी है 3x plus 2y minus 8 equal to 0. ठीक है. नाउ वी विल बी सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. हाउ टू सॉल्व? आप x लेंगे, y लेंगे और फिर हम लेंगे 1 और x के नीचे एक अरेंजमेंट बनाएंगे कोएफिशिएंट्स का. x के नीचे नंबर्स लिखने के लिए हम x को हाइड कर देंगे, x को नहीं लेना है. और इसके बाद आप देखिए y के कोएफिशिएंट्स, ये है 1 और ये है 2. यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमें y नहीं लिखना है साथ में. कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर 1y और 2y लिख देते हैं, ये गलत है. हमें y नहीं लिखना है, सिर्फ हमें कोएफिशिएंट लिखना है इन दिस वे. और फिर हम लेंगे ये कांस्टेंट टर्म्स जो हैं -5 और -8. इसके बाद y के नीचे यहाँ हमने -5 -8 पर छोड़ा था, तो यही रिपीट करेंगे. और इसके बाद y के नीचे y के कोएफिशिएंट्स नहीं लेंगे, y को हाइड कर दीजिए. -5 -8 हम लिख चुके हैं और रिमेनिंग है अब 2 और 3. ठीक है, क्लियर. और इसके बाद हम लेंगे 1 के नीचे 2 और 3 रिपीट होगा और कांस्टेंट के नीचे ये कांस्टेंट टर्म्स को हाइड कर लीजिए और 2 3 हम लिख चुके हैं. नेक्स्ट पेयर आएगा 1 और 2 का. सो आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट वी विल बी मल्टीप्लाइंग इन क्रॉस x अपॉन फर्स्ट 1 इंटू -8. So 1 into -8 will be -8 itself. Then we have the minus of formula and then we will be multiplying these two numbers 2 into -5. Then equal to y upon, पहले हम इस दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे -5 इंटू 3 और फिर माइनस आएगा फॉर्मूले का और ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे 2 इंटू -8. This will give us now first 2 into 2, then -3 into 1. Simplify now x upon -8
and this will become minus minus plus, 2 5s are 10. यहाँ से हमें मिल गया y upon minus 15, 5 3s are 15, minus minus plus 2 8s are 16 और ये हमें दे रहा है 1 upon 4 minus 3. It's very much clear. Again further we can simplify. This will give us x upon 2 minus 8 plus 10 is 2 equal to y upon this will be 1 equal to 1 upon 1. अब सिंपल नंबर्स हैं हमारे पास और x की वैल्यू कैसे मिलेगी? ये फर्स्ट और थर्ड इन दो रेशियोज पर फोकस करेंगे हम. फर्स्ट और थर्ड इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वल रखेंगे और उससे x की वैल्यू मिल जाएगी. सो लेट अस डू इट. Let me make some more space. Taking x upon 2 equal to 1 by 1, we get x equal to ये 2 यहाँ से ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 2 1s are 2 और अपॉन 1 से हमें सेम वैल्यू मिलने वाली है और इससे x की वैल्यू आ गई 2. Got it? Again taking these two expressions equal, these two ratios equal, we will get the value of y. Y upon 1 equal to, we get the value of y as equal to 1. 1 आ गई वैल्यू y की. ठीक है. So this is the solution of this given pair of linear equations. और आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़ को दी हुई इक्वेशंस में रखकर. लेट अस ट्राई टू गेट द वेरिफिकेशन ऑल्सो. लेट मी ब्रिंग द इक्वेशंस बैक. 2 and 1 is the solution, remember this. So now if we place 2 and 1 in the first equation, let me try here. It is 2x plus y minus 5 equal to 0. तो अगर हम x की जगह 2 रखें और y की जगह 1 रखें तो देखिए क्या मिल रहा है. 2 into 2 plus 1 minus 5 और ये हो गया 4 plus 1 minus 5. दिस इज 5 minus 5 equal to 0 जो कि हमारा RHS है. इसका मतलब हमारी जो आंसर आया है बिल्कुल सही है. और इसी तरह से आप इन वैल्यूज़ को सेकेंड इक्वेशन में भी रखकर अपना आंसर चेक कर सकते हैं. दिस विल बी इन द रफ पार्ट ऑफ योर वर्क. ओके. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज equations. As you can see, x equal to 2 and y equal to 1. We have the next pair, these two equations. Again, first we will compare these equations with these equations, the general form. Let us write them in the form 3x minus 5y minus 20 equal to 0 और इसको हम लिख सकते हैं 6x minus 10y minus 40 equal to 0. और अब हम जब इन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और कोएफिशिएंट्स का रेशियो लें तो हमें मिलेगा a1 अपॉन a2 कितना मिल जाएगा. देखिए आप यहाँ से a1 है 3 और a2 है 6. सो 3 by 6 it will be 1 by 2 on simplifying. Then we find the value of b1 by b2. b1 is minus 5 as you can see and b2 is minus 10. माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा अगेन 1 by 2. दोनों इक्वल आ रहे हैं तो अब हम निकालते हैं C1 by C2 की वैल्यू. C1 इज minus 20, C2 is minus 40. Minus and minus will be cancelled and divide by 20 you will get it equal to 1 by 2 and all the three are coming equal as you can see. So this means that A1 upon A2 it is equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. और ये कौन सी कंडीशन है? Yes, this implies that the given pair has infinitely many solutions. So here we can say hence the given pair of equations has infinitely many solutions.
I hope it is clear to you. And you can see here we are getting the second equation by multiplying the first equation by 2. अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो सेकेंड इक्वेशन मिल रही है, और ये केस होता ही है इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का. सो वी आर गेटिंग द रिजल्ट. We have one more set of equations, these two equations. Again, first we will compare these equations with these equations in the general form and then take the ratios of the coefficients. इससे हमें a1 upon a2 की वैल्यू मिल जाएगी. a1 है यहाँ पर देखिए आप 1 और a2 है ये 3, so 1/3. b1 by b2 की वैल्यू निकालते हैं. b1 is -3 as you can see and b2 is again -3. Minus will be cancelled and 3/3 is 1. तो आप देखिए ये दोनों वैल्यूज़ अलग आ रही हैं. ये 1/3 है, ये 1 है. So this means that a1 by a2 it is not equal to b1 upon b2. तो यहाँ पर हम c1 by c2 की वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं. और ये किसका केस है? This implies the given pair of equations has यूनिक सॉल्यूशन. ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो रही है, और इसलिए यहाँ पर हमें इस पेयर को सॉल्व करके सॉल्यूशन भी निकालना होगा. एंड वी विल बी सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो लेट अस रीराइट दीज इक्वेशंस. The equations are what are the equations? X minus 3y minus 7 equal to 0. This is the first one. And then we have 3x minus 3y minus 15 equal to 0. This is the second one. Yes. Now we will write down the coefficients in this arrangement. x के नीचे x की टर्म्स को हाइड कर दीजिए, आएंगी बाकी कोएफिशिएंट्स. -3 माइनस के साथ लिखेंगे नंबर अगर माइनस में है, और यहाँ हमें मिलेगा -7 और -15. y के नीचे ये पहले ये सेट रिपीट होगा -7 -15, और y की टर्म्स को हाइड कर दीजिए. ये दोनों हम लिख चुके. अब आ जाएगी यहाँ से 1 और 3, जो ये टर्म्स हैं 1 और 3. 1 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के लिए हम कांस्टेंट टर्म्स को हाइड कर देंगे और रिमेनिंग 4 कोएफिशिएंट्स लिखेंगे. 1 3 पे छोड़ा था, 1 3 रिपीट होगा, और यहाँ से आ गया -3 -3. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट? फर्स्ट वी मल्टीप्लाई इन दिस वे, -3 इंटू -15. फिर ये फॉर्मूले का माइनस आएगा और ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे. -3 इंटू -7. दिस विल बी द एक्सप्रेशन. दिस इज इक्वल टू y अपॉन, अगेन फर्स्ट दीज टू नंबर्स विल बी मल्टीप्लाइड. 3 इंटू -7 माइनस, देन दीज टू नंबर्स 1 इंटू -15 विल बी -15 itself. This is equal to, first multiply these two numbers. -3 into 1 will be -3. ये फॉर्मूले का माइनस, और फिर हम ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे. 3 into -3. Got it? Simplify now. X upon -3 -15. 15 3s are 45, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. यहाँ पर आप देखिए 3 बार माइनस है, 1 2 3, तो बिल्कुल माइनस आएगा. 3 7s are 21. This is equal to y upon -21 and minus plus 15. This is equal to 1 upon -3 minus plus 3 3s are 9. Getting the answer? Then again we can further simplify. This will give us x upon 45 minus 21. It will give us 24, equal to y upon -6, equal to 1 upon 6. -3 plus 9 is 6. अब आप ये फर्स्ट और थर्ड रेशियोज़ को इक्वेट करके x की वैल्यू ले सकते हैं,
और सेकेंड थर्ड को इक्वेट करके y की वैल्यू मिल जाएगी. सो व्हाट नेक्स्ट वी विल डू, टेकिंग x upon 24 equal to 1/6, we get x equal to, ये 24 यहाँ से ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 24 1 ज़ा 24 upon 6 and this will give us x equal to 4. So we can write further here that x is equal to 4. ये मिल गई हमें x की वैल्यू. अगेन टेकिंग y upon -6 equal to 1 upon 6, we get, what do we get, y equal to, ये -6 क्रॉस में ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें मिलेगा -6 upon 6. So this will give us y equal to -1. This is the value of y. And so the solution is x equal to 4, y equal to -1. And always you can verify your answer by substituting these values in the given equations. आप दोनों equations में x और y की जगह ये रख के चेक कर सकते हैं कि LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं या नहीं. अगर इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब हमने आंसर बिल्कुल सही निकाला है. और इन केस यू आर नॉट गेटिंग LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई गलती ज़रूर की है जिसे हमें फिर से चेक करना होगा. ओके, नाउ वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच वैल्यूज ऑफ A and B, here we have to find the values of A and B. For which values of A and B does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? So infinite number of solutions की condition आपको recall करनी होगी और ये pair of equations हमें दिया हुआ है. यहाँ आप देखेंगे A और B, ये दो unknowns है, unknown numbers जिन्हें हमें find out करना है. Got it? So for infinitely many solutions, what is the condition? We have A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. And here what is A1 by A2? देखिए आप x के साथ कोएफिशिएंट है 2 और यहाँ पर x के साथ कोएफिशिएंट है a माइनस b, तो ये आ गया 2 अपॉन a माइनस b. ये वैल्यू हो गई A1 by A2 की. दिस इज इक्वल टू B1 by B2 और B1 क्या है, y का कोएफिशिएंट जो है 3 यहाँ पर और नीचे यहाँ पर y के साथ है a प्लस b, तो यहाँ हमें मिलेगा a प्लस b. दिस इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म्स 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये दोनों कांस्टेंट्स RHS में लिए हुए हैं हमने, तो ऐसे केस में भी रेशो सेम मिलेगा. आप चाहते तो कांस्टेंट्स को LHS में ले सकते थे, दोनों को, या तो दोनों LHS में होने चाहिए या दोनों RHS में. ऐसा मत कीजिएगा कि एक LHS में रख लिया और एक RHS में, तब आपके साइन की गड़बड़ हो जाएगी. इसलिए आप दोनों को अभी हमने RHS में लिया हुआ है और रेशो ले सकते हैं हम इस तरह से. हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया है. अब यहाँ पर हमें A और B की वैल्यू निकालनी है क्योंकि दो अननोन्स हैं यहाँ पे, तो दो इक्वेशंस हमारे काम की होंगी. यहाँ पे कैसे निकालेंगे, पहले तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं और A और B में एक इक्वेशन बनाते हैं. लेट अस इक्वेट द फर्स्ट टू. फ्रॉम फर्स्ट टू रेशियोज वी गेट, लेट अस सी, आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी. देखिए हमने ये क्रॉस में 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्रॉस में ये मल्टीप्लाई कर दिया, उससे ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा. नेक्स्ट व्हाट, ओपन अप द ब्रैकेट्स. 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b. नेक्स्ट व्हाट,
b वाली टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। आप देखिए ये -3b अगर हम LHS में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 2b यहाँ पहले ही है और ये हो जाएगा +3b, 3a यहाँ पहले ही है और इस 2a को RHS में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -2a। So just we have brought the terms here and there. This will give us 3a minus 2a will be a and 2b plus 3b it will give us 5b. Okay, let this be the first equation. a equal to 5b. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम ये सेकेंड और थर्ड रेशियोज को इक्वेट करके सेकेंड इक्वेशन ला सकते हैं। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। We have 3 upon a plus b this is equal to 7 upon 3a plus b minus 2। ठीक है, अगेन वी विल मल्टीप्लाई इन क्रॉस इस तरह से और ये हमें देगा 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2। दिस विल बी इक्वल टू 7 इंटू a plus b. Again open up the brackets, 3 3s are 9a plus 3b minus 3 2s are 6, 7a plus 7b. अब आप इन a और b की टर्म्स को LHS में ले आइए, 9a plus 3b minus 7a minus 7b minus 6 equal to 0। अब ये जब दोनों ही टर्म्स LHS में आ गई तो RHS में 0 बचेगा। Next what? 9a minus 7a. This will give us 2a. And 3b minus 7b. This will give us minus 4b. Minus 6 equal to 0. Got it? Now the three coefficients are multiples of 2. तो 2 से डिवाइड करके हम एक सिंपलर फॉर्म ले आते हैं। 2 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा a. This will be 2b and this will be 3. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 और यहाँ पर और हम ले सकते हैं a minus 2b equal to 3. This is your second equation. अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू को जो है 5b सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं और हमें फिर b में एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन मिल जाएगी और b की वैल्यू मिल सकती है। सो वी राइट हियर सब्स्टिट्यूटिंग a equal to 5b from equation 1 in equation 2 we get a की जगह हम लिख रहे हैं 5b minus 2b equal to 3 और 5b minus 2b will be 3b equal to 3 and this will give us b equal to 3 by 3 that is 1. So this is the value of b. b की वैल्यू आने के बाद let me write it little bit downwards so that there is no confusion in your mind. b will be equal to 1. 3 upon 3 it will be equal to 1. Next what? Substitute this value of b in equation 1. Putting b equal to 1 we are doing it here in equation 1 we get equation 1 is a equal to 5b और अब b की जगह अगर हम 1 रिप्लेस करें तो इससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 5, a equal to 5. So we have got the values of a and b and this was asked in this question. Just have a look. हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि a और b की वैल्यू निकालिए अगर दिए हुए पेयर के इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो हमने इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन अप्लाई करी, उससे कोएफिशिएंट्स को रेशियोज़ के फॉर्म में इक्वेट किया और आप देखेंगे इससे हमें दो इक्वेशंस मिली। एक तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई a इक्वल टू 5b फर्स्ट और सेकंड रेशियो को इक्वेट करने से और फिर सेकंड और थर्ड रेशियोज़ को इक्वेट करने से हमें ये सेकंड इक्वेशन मिली। बस अब सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यूज़ मिल गई हैं। Got it? We then move towards the next question. For which value of k will the following pair of linear equations have no solution? अब हमें कौन सी कंडीशन लानी है यहाँ?
नो सॉल्यूशन की, और बताइए कि वो क्या है. लेट्स थिंक इट ओवर. द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन is A1 upon A2 equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2. और यहाँ पर here what is A1 by A2? A1 is the coefficient of x, that is 3 here, and A2 is the coefficient of x in the second equation, which is 2k minus 1. Okay. This is equal to B1 by B2. B1 is the coefficient of y and it is 1 here, 1. And B2 is this k minus 1, coefficient of y in the second equation. Constant C1, here it is 1. Both are in the RHS, so it's okay. And here we have 2k plus 1. And it is not equal, remember, not equal to 1 by 2k plus 1. अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखिए ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं. यहीं से हम k की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, फ्रॉम फर्स्ट टू रेशियोज वी गेट, व्हाट डू वी गेट? क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो 3 इंटू के माइनस 1 and 1 into 2k minus 1. Now simplify, it will give us 3k minus 3, 3k and 3 ones are 3, and it will be 2k minus 1. Now simply need to exchange the terms. 3k और ये 2k यहाँ आकर minus 2k हो गया, यहाँ minus 1 पहले ही है, minus 3 इधर जाकर plus 3 हो जाएगा. 3k minus 2k, it's 1k or simply k, and minus 1 plus 3, it will be 2. So this is the value of k, and so we can write the final answer. The given pair of equations has no solution for k equal to 2. This is the answer to this question. Okay, then we take the next one. Question 3. Solve the following pair of linear equations by the substitution and cross multiplication methods. So this is the first equation and this is the second one. हम इन equations को पहले एक बार substitution method से solve करेंगे और बाद में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे, जिससे आप दोनों मेथड्स को कंपेयर कर सकें और ये डिसाइड कर सकें कि हमें आने वाले क्वेश्चंस में कौन सा मेथड सूटेबल रहेगा. सो लेट अस सी हियर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड वन. तो पहले हम इन दोनों में से एक इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, और उसमें दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे. आप देखिए सेकेंड इक्वेशन में नंबर्स छोटे हैं, तो हम सेकेंड इक्वेशन को ही चूज करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 3x इक्वल टू 4 माइनस 2y. हमने दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, 2y को RHS में भेज दिया और ये माइनस 2y हो गया. यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 4 माइनस 2y अपॉन 3. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3. अब इस एक्सप्रेशन को, जिसमें हमने x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है, इस एक्सप्रेशन को हम कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे? यस, इन इक्वेशन 1. क्योंकि हमने ये एक्सप्रेशन इक्वेशन 2 से निकाला है, तो वापस इक्वेशन 2 में नहीं रखेंगे, हम रखेंगे इसे इक्वेशन नंबर 1 में. सो वी राइट हियर सब्स्टिट्यूटिंग the value of x from equation 3 in
equation number 1, we get, what do we get? 8 into x. So 8 will be outside and let us place the expression in brackets. 4 minus 2y upon 3. ये आ गई x की जगह वैल्यू यहाँ पर, प्लस 5y equal to 9. Okay. Now we need to simplify this equation and get a simpler form. So let us move towards the next page. आप देखिए यहाँ पर ये 3 डिनोमिनेटर में है, तो इस 3 को यहाँ से हटाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को ही 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. Let us first open up the brackets. It will give us 8 4s are 32 minus 8 2s are 16y upon 3. हमने क्या किया, ये 8 को 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. So 8 4s are 32 minus 16y upon 3 and then we have plus 5y equal to 9. अब इस 3 को रिमूव करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिलेगा 32 minus 16y plus 5 3s are 15y equal to 9 3s are 27. हमने जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 27, ये 15 और 3 से 3 कैंसिल होने पर ये एज इट इज़ टर्म हमें मिल गई. सो इन दिस वे वी हैव सिंप्लीफाइड. Here we have 3. Next what? Now we have an equation in variable y only. So we can easily find out the value of y. This will give us 32 minus 1y or simply minus y equal to 27. Now 32 will be here. 27 को यहाँ लाएंगे तो ये माइनस में हो गया और y को RHS में ले जाते हैं तो ये बन जाएगा प्लस y. And this will give us the value of y as 12 minus 7 it's 5 and the value of y is 5. Got it? Now what next? We have to find the value of x. So we can substitute this value of y in this equation 3. यहाँ पर हम y की वैल्यू रख के x की वैल्यू easily निकाल सकते हैं. So let us write down here. Substituting the value of y in equation number 3, we get x equal to, let us see what is the equation, 4 minus 2y upon 3. So 4 minus 2 और y की जगह अब हम रख रहे हैं 5 upon 3. ये हमें देगा 4 minus 10 upon 3. This will be equal to minus 6 upon 3 and this will be equal to minus 2. So x is equal to minus 2. This is the solution. This is the value of x and hence we can say that x is equal to minus 2 and y is equal to 5. As you can see, this is the complete solution of these equations given in the pair form. Okay. Next we have to simplify or solve these equations by cross multiplication method also. So let us move towards the cross multiplication method. Let us rewrite the equations. The equations are 8x plus 5y equal to 9. So we write here 8x plus 5y और अब हम कांस्टेंट को भी LHS में रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड में. ये याद रखिएगा, इट इज़ नेसेसरी टू राइट इन दिस वे ओनली. तो ये ध्यान रखना आप. एंड यहाँ हम लिख सकते हैं द इक्वेशंस आर दिस इज द फर्स्ट वन. लेट अस सी द सेकेंड वन. 3x plus 2y इक्वल टू 4 और हम कैसे लिखेंगे 3x plus 2y minus 4 इक्वल टू 0. ओके. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के केस में हम x, y और कांस्टेंट 1 के नीचे कुछ एक्सप्रेशंस लिखेंगे. x के नीचे हम x की टर्म्स को हाइड कर देंगे और क्या बचा 5, 2, -9, -4. y के नीचे हम y की टर्म्स को हाइड करेंगे. ये -9, -4 पहले आएगा और फिर आएगा आपका 8 और 3. इस तरह से साइकिल चलती है. पहले
x की टर्म्स, फिर y की, फिर कांस्टेंट, फिर उसके बाद वापस x की टर्म्स. तो ऐसे ही साइकिल चलती है, a b c, अगेन a b c, a के बाद b, b के बाद c के बाद अगेन a. तो वही चल रहा है यहाँ पर, आप देखिए b c के बाद वापस a के जो करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स है वो. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव बिलो 1 वी विल राइट 8 and 3 फर्स्ट. जो यहाँ पर है पहले रिपीट होगा और कांस्टेंट टर्म्स को हाइड कर लीजिए. 8 3 लिख दिया है, रिमेनिंग हो गया 5 और 2. नेक्स्ट x अपॉन फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई 5 एंड -4. इसके बाद ये फॉर्मूले का माइनस और फिर हम ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 into -9. Then y upon first multiply these two numbers -9 into 3, ये फॉर्मूले का माइनस और फिर हम ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 into -4. ये देगा हमें 1 upon first 8 into 2 and then -3 into 5. I hope it is clear to you. Next we see here x upon, it will be -20 and minus plus 2 9s are 18. Here y upon, it will be -27 minus plus 8 4s are 32, and here we have 1 upon 16 minus 15. Again simplify, we will get x upon -2 equal to y upon, here you can see 27 minus and 32, it will give us 5 equal to 1 upon 1. Got it? Next we will be equating the first and the third ratio. और इसको ऊपर ले लें अगर हम, taking x upon -2 equal to 1 by 1, we get x equal to, ये -2 क्रॉस में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 ही मिलेगा. ये मिल गई हमें x की वैल्यू और यहाँ पर टेकिंग y upon 5 equal to 1 by 1, this will give us y equal to 5 1s are 5. Here we can write, we get y equal to 5. 5 यहाँ क्रॉस में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें मिलेगा 5 1s are 5. So x is -2 and y is equal to 5. यही सॉल्यूशन हमें मिला था सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने पर भी. देखिए आप, -2 and 5, here also -2 and 5. So these were the two methods, and by this time I hope you are clear in all the 4 methods: graphical method, substitution method, elimination method and cross multiplication method of solving a given pair of linear equations in 2 variables. So this was all in today's class. In our next class we will continue the same exercise and we will be solving some word problems and we will be applying any of these 4 methods to solve the given pair. So till then, practice these questions. Goodbye.